So I would like to request now Dr. Akhilesh Sharma, who is a very specialist in Ayurveda and who is expertise in Panchkarma therapy. He is widely recognized for his outstanding contributions in the field of Ayurvedic medicines. He is also awarded with Dhanvantri Award, the Chikitsa Shiromani Award for his outstanding contributions to Ayurveda. He is also associated with Ayushman Bharat and he has written numerous books for Ayurveda. Please welcome Dr. Akhilesh Sharma. Thank you, Dr. Tuli, for enlightening us with your thoughts about taking care of the aged people. And as he very rightly said, taking care of like joint family concept, which was integral part of Indian Sanskriti, should be revitalized and incorporated. And it's a matter of great privilege. Dr. Rakhi Mehra, our dear friend, is also here. हम लोगों में सुनने वाले बहुत कम लोग हैं, तो मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा आज. शुरुआत एक मंत्र से करते हैं, क्योंकि मुझे कहा गया था कि होलिस्टिक अप्रोच के साथ हेल्थ का इनकॉर्पोरेशन इस विषय पर बोलेंगे. तो द वे द ट्रेडिशन इज़ द वे आई डू इट इन द वेस्टर्न वर्ल्ड. मैं यूएस में कुछ जगह मेडिकल कॉलेजेस में आयुर्वेद पढ़ाता हूँ, और देयर इज़ ए कॉलेज कॉल्ड कैलिफोर्निया कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा वेयर आई एम ए फैकल्टी, एंड अनदर इंस्टीट्यूशन कॉल्ड हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका. और आयुर्वेद को लेकर के मुझे 34 देशों में इसको ले जाने का सौभाग्य मिला है, और पिछले 34 ही वर्षों से मैं इसको लेकर के पूरे वर्ल्ड में पताका फहरा रहा हूँ. धन्यवाद. एक छोटा सा श्लोक है. जो स्वास्थ्य का बहुत पावरफुल श्लोक है, वो पहले उसका उच्चारण करूंगा एंड आई लेट यू नो द लिटिल मीनिंग ऑफ इट. सभी का ध्यान चाहूँगा. ओम भेषजम भेषजम महाभेषजम राजा गते भेषज्यम भेषज्यम महाभेषज्यम राजा समुद्गते स्वाहा. हजारों साल पहले किसी ने ये मंत्र लिखा था. Nobody knows who those people were. They never wrote even their names under that shloka or under any of the shlokas documented many thousands of years ago. Because taking the intellectual property right was not their cup of tea. ये पृथ्वी पर मानव मात्र के लिए कल्याण के लिए लिखे गए कुछ श्लोकों में से एक है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ओम भेषज्यम भेषज्यम महाभेषज्यम राजा, which means oh the ruler of the rulers, the master of the masters, the healer of the healers. You have to prevail, exist forever, forever and forever. And then we say samudgataya swaha, which means that anything in the form of negativity of thoughts and emotions, negativity of bacteria and pathogens, negativity within me at microcosmos level
and negativity around me at macrocosmos level. All of that has to be offered to the holy fire to convert it into positivity. This was the literal meaning of this mantra, which I generally enchant in English, क्योंकि ज़्यादातर सुनने वाले वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग होते हैं तो वो अचंभित हो जाते हैं. And the recent studies done at Brahmavarcha Shodh Sansthan in Haridwar have revealed that when you chant this mantra at a particular pitch, rhythm, rate and volume, even the bacteria and pathogens stop multiplying under the microscopic examination. तो आज देखिए, ये आज के साइंस के माध्यम से उन टूल्स के हम इसको साबित कर पाए कि यस, द बैक्टीरियाज एंड पैथोजेंस आल्सो गेट स्टन्ड एंड स्टॉप मल्टीप्लाइंग. लेकिन आज से हज़ारों साल पहले आप कल्पना कीजिए, जिन लोगों ने ये लिखे थे मंत्र, उन्होंने कैसे उनको साधित किया होगा. इसके पीछे हज़ारों साल की तपस्या, मेहनत रही है उन लोगों की. They have been continuously doing the observation about the interaction of micro and macrocosmos. यानी ये जो शरीर जो कि माइक्रोकॉस्मॉस है, जिसका नाम जीवात्मा भी कहते हैं हम, और वो परम शक्तिमान जिसको परम आत्मा कहा है, there is a continuous interaction between them also, and man is a miniature of nature as we say, है ना. हम आयुर्वेद में कहते हैं यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, कि जो भी ब्रह्मांड के अंदर है वही हमारे इस पिंड के अंदर भी है. तो हमारा कंटिन्यूस इंटरेक्शन होता है उसके साथ में, और उस इंटरेक्शन के माध्यम से ही हमारे शरीर में जो भी परिवर्तन होते हैं वो होते हैं. अब हम बात कर रहे हैं आज कि होलिस्टिक अप्रोच है. होलिस्टिक शब्द अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन उसका हिंदी में अगर अनुवाद करें तो बड़ी विशदता है इस विषय में. उस होलिस्टिक अप्रोच में ऑलरेडी आयुर्वेद जो है उसी होलिस्टिक अप्रोच और होलिस्टिक एंगल के साथ ही काम करता है. आज हम बात कर रहे हैं कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मेडिसिन की हम बात करते हैं कि साहब प्रिवेंशन कैसे होना चाहिए बीमारियों का. जैसे अभी अभी आपने सुना डॉक्टर चौधरी से भी कि एलोपैथिक मेडिसिन जो पिछले कुछ 100 सालों की ईजाद है ना. इफ़ यू गो इनटू हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, यू हैव टू गो इनटू द हिस्ट्री ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मेडिसिन. फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ओरिजिन एंड स्क्रिप्ट ऑफ मेडिसिन. तो अगर मॉडर्न मेडिसिन का इतिहास देखें तो कितना पुराना है? एनीबडी हु वांट्स टू रेज हैंड, कितना पुराना? लगभग कुछ 100 साल पुराना है ना, केवल कुछ 100 साल पुराना. लेकिन हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ कितनी पुरानी है? जीवन का इतिहास. अगर हम हिस्ट्री ऑफ डायनासॉर्स के इतिहास में जाएं तो जीवन का इतिहास डायनासॉर्स के इतिहास से अगर शुरू होता है तो ये लगभग 12,000 साल पुरानी बात है. तो आप कल्पना कीजिए, अगर जीवन का इतिहास इतना पुराना है तो चिकित्सा का इतिहास क्या उतना पुराना नहीं होगा? ऑब्वियसली उतना ही पुराना होगा. तो चिकित्सा का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है. आप सोचिए, जब एक छोटे डायनासोर के बच्चे ने किसी दिन कुछ गड़बड़ खा लिया या ओवर ईट कर लिया और उसके पेट में दर्द हुआ तो उसने क्या किया होगा? किस डॉक्टर के पास गया वो दिखाने? एनी गेस, एनी आइडिया? कॉमन सेंस से क्या विचार आता है दिमाग में? वो छोटा डायनासोर का बच्चा पहले अपनी माँ के पास गया, माँ ने उसको डांट पिलाई कि तूने फलानी चीज़ खाई क्यों और ज़्यादा क्यों खाई. वो माँ की डांट उसके लिए दवा थी, थी कि नहीं थी? फिर उसके बाद उसने कहा जाके फलानी जड़ी बूटी खा ले, तो उसने फलानी जड़ी बूटी खाई, उससे उसको आराम मिला. या उसने कहा जा उस तालाब में जाकर के अब पानी पी ले, हाँ, जो सूरज की गर्मी से थोड़ा गर्म है, गुनगुना पानी पी ले, उससे तो ठीक होगा. उसने वो किया. या उसने क्या किया, वो पैरों को कुछ पर्टिकुलर पोजीशन में बैठा के अपने पेट को, जैसे हम करते हैं कि पेट पकड़ लिया कि दर्द हो रही है, क्या करते हैं, अरे कुछ नहीं मिलेगा, क्या कहेंगे, अरे मम्मी पेट में दर्द हो रही है, एंड वी पुट बोथ आवर लिम्स हियर, राइट. दैट वाज आल्सो ए मेडिसिन. दैट स्ट्रेंज योगिक पोस्चर वाज आल्सो ए मेडिसिन. तो चिकित्सा का इतिहास उतना ही पुराना है जितना जीवन. हमें उस ढंग से पढ़ाया नहीं जाता. हमें व्हेन वी टॉक अबाउट मेडिसिन तो एक ही बात दिमाग में आती है कि ओके वेस्टर्न मेडिसिन. क्यों? इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि आप सब लोग
जिस देश में पैदा हुए हैं वो 200 साल अंग्रेज़ों का गुलाम रहा, उससे पहले 400 साल का मुसलमान आक्रमणकारी इतिहास रहा। इन 600 सालों में भारतीय संस्कृति या सनातन संस्कृति जो हजारों वर्ष पुरानी है, ठीक है, उसमें वर्णन आता है एक भाषा का, एक लैंग्वेज का, जिसका नाम है, हम भाषा का नाम नहीं लेते, पहले हम बात करते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मेडिसिन, देन हैव टू गो टू इन द हिस्ट्री ऑफ प्रूफ, है ना। हम कहते हैं हम साइंटिफिक एरा में रहते हैं, भाई साहब प्रूफ दीजिए, तो प्रूफ की बात करें, देन वी हैव टू गो टू द हिस्ट्री ऑफ स्क्रिप्ट ऑफ मेडिसिन, राइट। तो अगर फिर मैं यही बात जब वेस्टर्न वर्ल्ड में अमेरिका में पूछता हूँ, हिंदुस्तानी भी कुछ बैठे होते हैं, गोरे भी, मैं कहता हूँ नो इंडियन शुड आंसर दिस क्वेश्चन, ओनली गोरा वो शुड आंसर, ठीक है। तो कुछ लोगों की थ्योरियाँ चढ़ जाती हैं कि भाई हम क्यों नहीं जवाब देंगे, तो चुपचाप मैं देखता रहता हूँ और कुछ गोरों के हाथ खड़े हो जाते हैं। मैंने कहा जी अगर what is the so-called mother tongue of all the modern European languages, which is called mother tongue of all the languages also, तो कई गोरों के हाथ खड़े हो जाते हैं, उनमें से धीरे धीरे पूछो तो क्या उत्तर मिलता है, कौन सी भाषा हो सकती है, आपको भी पता है, संस्कृत। तो मैं कहता हूँ नाउ इज इट नॉट ए मैटर ऑफ प्राउड फॉर एवरी इंडियन टू नो दैट हिस्ट्री ऑफ स्क्रिप्ट स्टार्ट्स फ्रॉम योर कंट्री, सो कॉल्ड संस्कृत। तो खुश हो जाते हैं। मैंने कहा अगर मैं आपको कहता कि आप जवाब दो तो ये गोरा सोचता भाई हम बायस्ड हैं, शायद हैं, हम फेवरेटिज्म फैला रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। तो हम फख्र से कह सकते हैं कि चिकित्सा का इतिहास इस विश्व की सबसे पुरानी लिपि जिसका नाम संस्कृत है उसमें लिखा गया। द ओल्डेस्ट लिटरेचर रिटन वॉज कॉल्ड एज वेदास, राइट। अगर हम वैदिक लिटरेचर में जाएं तो वेदास वर द ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंटेड लिटरेचर अवेलेबल ऑन दिस अर्थ। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद नाम की 4 पुस्तकें जिसके बारे में आप सुनते हैं, कितने लोगों ने पढ़ी हैं ये अलग चर्चा का विषय है, लेकिन सुनते तो हैं ना कम से कम। इनमें से ही आयुर्वेद उन्हीं का उपांग है, सब डिवीजन है। उसमें एक एग्जाम्पल आता है कि वे बैक मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो देयर वाज ए काइंड ऑफ ए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड समवेयर इन हिमालयाज in which people from intellectual class of the society from all over the world got together and they asked one very basic question to the Supreme Soul, that why are we here, what is the purpose and what is that we have to achieve। कि प्रभु सृष्टि का अर्थ क्या है, हमने अचीव क्या करना है, हम यहाँ आए क्यों हैं। वेरी बेसिक क्वेश्चन विच कम्स टू एवरी ह्यूमन माइंड इवन टुडे। जब ये पूछा वहाँ के बैठे हुए ऋषि मुनियों ने, जो कि वाइट कॉलर्ड क्लास ऑफ द सोसाइटी थी ऑफ दैट टाइम, तो ब्रह्मा जी द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स सेड, दिस इज माई क्रिएशन, ऑल ऑफ यू आर माई सब डिविजन्स एंड यू विल बी कॉल्ड एज जीवात्मास एंड आई एम सो कॉल्ड परमात्मा एंड यू हैव टू परफॉर्म बेस्ट ऑफ योर ड्यूटीज टुवर्ड्स योर सेल्फ, फैमिली एंड सोसाइटी। क्या करना है आपने, आपका क्या उद्देश्य है, अपने प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए मोक्ष प्राप्ति करनी है, वही तुम्हारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। ठीक है। जब सबको समझ में आ गया कि अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, एक सज्जन खड़े हुए, हिज नेम वाज ऋषि भारद्वाज। ऋषि भारद्वाज रोज हिज हैंड, ही सेड, सर मे आई आस्क वन क्वेश्चन। ब्रह्मा जी सेड, गो अहेड। ऋषि भारद्वाज, भाई साहब जरा 2 मिनट, एक्सक्यूज मी सर। ऋषि भारद्वाज खड़े हुए और बोले कि प्रभु अगर मोक्ष प्राप्ति हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है तो हमें कोई ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे शरीर, आत्मा और मन स्व में स्थिर रहें, ताकि हम मोक्ष प्राप्ति के अंतिम साधन को आसानी से प्राप्त कर सकें। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, उन्होंने कहा, वेल इन ए ट्रिकी वे यू हैव आस्क्ड मी अ बिग फेवर। तुमने मेरे से बहुत बढ़िया तरीके से वरदान मांग लिया है, लेकिन अब क्योंकि तुमने मांग लिया है तो मैं तुम्हें यह दैविक ज्ञान देता हूं। दिस डिवाइन नॉलेज आई एम गोइंग टू इम्पार्ट फॉर द पीपल ऑन दिस अर्थ। मनुष्यों को था यह दैविक ज्ञान जो देवों के लिए बना था, लेकिन आज मैं पृथ्वी पर मानव मात्र के कल्याण के लिए तुमको ये अर्पित करता हूं। अगर इस ज्ञान को अपनाओगे तो शरीर, आत्मा और मन स्व में स्थिर रहेंगे
इसलिए उससे क्या होगा, मोक्ष प्राप्ति के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना आसान हो जाएगा। तो वह ज्ञान जो ऋषि भारद्वाज के माध्यम से इस धरती पर आया, और उसके बाद पूरे 6 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, भेल, जतुकर्ण, पराशर आदि 6 मुनियों को ये ज्ञान दिया गया, और उसके बाद पूरे विश्व में ये फैला। This is unparalleled example out of entire history of medicine which tells you why do you need good health. अगर मैं आपसे पूछूं आप अच्छा स्वास्थ्य क्यों चाहते हैं, बताइए क्या उत्तर है? Why do we need good health? We want to be स्वस्थ होने के लिए, अपनी ड्यूटीज अच्छी तरह परफॉर्म कर सकते हैं। और कई लोग आंसर देते हैं, गोरे जो हैं कहेंगे टू बी हेल्दी, टू बी हैप्पी। हाँ, अब 6 पैक मसल्स लाइक आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर और दारा सिंह। तो फिर मैं पूछता हूँ, ओके, डज द हैप्पीनेस स्टे फॉर एवर? डज दैट स्टे? डज हेयर फॉल प्रिवेंट्स? कभी होता है कि कभी गिरेंगे ही नहीं? नहीं होता ना। हैप्पीनेस भी थोड़ी देर, वो जो हम कर्म कर रहे हैं, एक करते हैं उसके बाद वो खत्म हो जाता है। मतलब ऑल दीज आर शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल नहीं है इन सब में। अल्टीमेट गोल इज टू अचीव द अल्टीमेट स्टेट ऑफ लिबरेशन। यहाँ पर हेल्थ केयर और स्पिरिचुअलिटी आकर के एक दूसरे से मिल जाते हैं। केवल वर्ल्ड की एक ही चिकित्सा पद्धति है जो आपको समझाती है कि तुम्हारा अंतिम लक्ष्य क्या है और स्पिरिचुअलिटी और हेल्थ केयर में कनेक्शन क्या है। जिस दिन हमें समझ में आ जाए कि स्व में स्थिर रहना क्यों इम्पोर्टेंट है और स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा क्या होती है, जो आयुर्वेद कहता है कि इसमें आत्मा, इंद्रिय, मन, ये तीनों और इंद्रियां, ये सारे स्व में स्थिर रहें, यानी बैलेंस्ड रहें। Which means you are physically, mentally and spiritually pure, healthy and balanced. That is the complete definition of health. Few years ago, WHO used to say that absence of a disease in the physical body means complete state of health. Ayurveda ने कहा no, no, no. Physical, mental and spiritual well-being of an individual makes you completely healthy. तो उनको definition को correct करना पड़ा। ठीक है, तो देखिए कितनी ब्यूटीफुली हमें पढ़ाया गया है। लेकिन विडंबना ये है कि हमें ये बात जो स्कूलों और कॉलेजों में बेसिक लेवल पे पढ़ाई जानी चाहिए थी, नहीं पढ़ाई जानी जाती। इसलिए आयुर्वेद की गौरव और गरिमा को हम समझ नहीं पाते। मुझे दुख है इस बात का। आज इसी विषय पर पूरे मतलब यहाँ पर नहीं, पूरे देश में स्कूलों और कॉलेजों में आयुर्वेद की महानता का बखान प्रॉपर ढंग से नरेट करना चाहिए कि कैसे आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं है, ये जीवन शैली है। इट इज आर्ट। व्हाट इज आर्ट ऑफ बीइंग? आर्ट ऑफ बीइंग व्हाट? आर्ट ऑफ बीइंग राइट, आर्ट ऑफ बीइंग करेक्ट, आर्ट ऑफ बीइंग करेक्ट फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली। दैट्स व्हाई एब्सेंस ऑफ अ डिजीज इन द फिजिकल बॉडी इज नॉट ओनली कंप्लीट स्टेट ऑफ हेल्थ। अगर आपकी बॉडी आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर या दारा सिंह की तरह स्ट्रांग भी है और मल्टीविटामिन की फैक्ट्री आपके बैकयार्ड में लगी हुई है और पूरा हर्बेरियम गार्डन भी है आयुर्वेद की सारी जड़ी बूटियों का, लेकिन आत्मा अंदर से खिन्न है, मन दुखी है, इंद्रियां खुश नहीं हैं, आपको क्या लगता है आप स्व में स्थिर हैं? नहीं है, है ना? आपकी अंतरात्मा की आवाज़ इमीडिएटली कहती है नो नो नो। केवल शरीर नहीं, मन, आत्मा और इंद्रियां भी स्व में स्थिर होनी चाहिए। उसी के लिए आयुर्वेदा ने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में, अब जिसकी बात कर रहे हैं कि आयुर्वेद, आज तो मॉडर्न मेडिसिन एंटीबायोटिक्स के खोजने के 60-70 साल बाद ही फ्रस्ट्रेट होकर बात कर रही है कि साहब कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ हेल्थ के पैरामीटर को तो हम मीट ही नहीं कर रहे। जैसा डॉक्टर चौधरी अभी कह गए कि भाई एक भी दवाई अभी तक ऐसी नहीं बना पाए जो पूरी तरह कोई एक बीमारी ही मिटा दे। तो इसलिए पैकेज डील में अध्यात्म को, भारतीय वैदिक वांग्मय के इतिहास में जो अध्यात्म है उसको हमको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। पहले खुद समझना पड़ेगा आत्मिक स्तर पर।
आपको ये लगना चाहिए कि आप को ये बात अंतरात्मा तक झंझोड़ती है, इसीलिए उसके मल्टी डायमेंशनल पैरामीटर्स हैं। सॉरी, मैं कुछ पॉइंट्स लिख के लाया था बेटे, एक मिनट मैं तेरा बैग उठा लेता हूँ, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा पॉइंट्स भी वो क्विकली। तो देखिए, इतनी कंप्लीट डेफिनेशन जो है वो केवल आयुर्वेद देता है, जो आपको बताता है कि शरीर, आत्मा और मानसिक लेवल पर हमारा बैलेंस कैसे बना रहे। तो आयुर्वेद के इतिहास की उत्पत्ति का पहला एग्जाम्पल दिया कि चिकित्सा का इतिहास हमारे देश से शुरू हुआ, कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द लिटरेचर हैपेंड हियर 5000 साल पहले कहते हैं। लेकिन उन 5000 साल पुरानी पुस्तकों में क्या लिखा है? ये अनादिकाल से है ज्ञान। इट हैज़ बीन देयर बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, शाश्वत है, प्योर है, ठीक है, शाश्वत है और अनादि है। अब अनादि शब्द का मतलब क्या है? बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, देश और काल से परे है, यही उसकी महानता है, और उसको दैविक ज्ञान कहा है। हम कुछ पाठ तो भगवान राम जैसे, चलो जी राम मंदिर बनने गया, हम जय श्री राम, ओम नमः शिवाय सब करते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन उसकी कंप्लीट पिक्चर और एस्पेक्ट को नहीं समझते कि स्व में स्थिर रहने के लिए हाउ इट वाज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब बात कर रहे थे कि हम, इम्पॉर्टेंट टॉपिक था कि मुझे जो दिया गया कि हमें ये समझना और समझाना है कि क्या इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर मॉडल होना चाहिए जिससे हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो मेरा एक सजेशन ये था, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड जा रहा है, ये बाद में भी सुना जाएगा, हमने आयुर्वेदा के लाइफ कोच तैयार करने हैं, क्योंकि एक तो सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है, वो हमारे जीवन शैली में भी है, हमारे दैनिक जीवन में भी उसका बहुत बड़ा रोल है। चाहे वो घरेलू जड़ी बूटियाँ कहें, उसको नानी दादी के नुस्खों के रूप में कहें, काफ़ी चीज़ें वो इनकलकेट करते हैं हम संस्कृति की वजह से। बाय डिफ़ॉल्ट हम उस संस्कृति में पैदा हुए हैं जिसमें वो चीज़ें हम कहीं कहीं कुछ कुछ भूल गए, लेकिन आज भी वो कॉन्सेप्ट बहुत ताकतवर है। तो जो मेरा आइडिया था कि वाई आयुर्वेदा, बिकॉज इट इज़ ए नेचुरल सिस्टम ऑफ हीलिंग, है ना, गिवन बाय नेचर, ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। तो इट इज़ ए मैनुअल ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड वेल बीइंग, ठीक है, अंग्रेजी में अगर कहें तो। जो कॉन्सेप्ट है उसको, जैसे मैंने कहा, अभी अभी कुछ चीज़ों से हमने साबित भी किया कि कोरोना काल में हमने छोटा सा आयुष काढ़ा जैसा बनाया और उसने पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में अपनी महत्ता की पहचान करा दी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जिनको जितना जितना नुस्खा मालूम था। बाय द वे, मैं बताना चाहूँगा कि आई कॉन्सेप्चुअलाइज दैट, आयुष काढ़े में मेरी भूमिका थी उसको फार्मुलराइज करने में। जी, आज भी यूज़ करते हैं, एब्सोल्युटली। तो ये जो सारी थ्योरी थी ना आयुर्वेद की, वात पित्त कफ की, 5 एलिमेंट्स की, त्रिदोष की, ये सारी आज भी देखेंगे, समझनी और समझानी बहुत आसान है। हम कहते हैं कि शरीर जैसे पंच तत्वों से बना है ना, 5 एलिमेंट थ्योरी की बात करते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अगर हम मॉडर्न मेडिसिन में देखें, जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कहती है एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स, 5 एलिमेंट थ्योरी में कहते हैं एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। If we combine them in a particular permutation and combination, they make 3 things called doshas, है ना। दोष कहा है संस्कृत में उनको। अब दोष का क्या मतलब होता है ना, जो दुष्य है, जो which has got a tendency to get defective or imbalanced, right? तो कहते हैं दुष्यते अनेन इति ही दोषा, the one which has got tendency to get out of balance is called as dosha। तो इसीलिए शरीर क्या है? नाशवान, क्योंकि उन त्रिदोषों से बना है। अगर नाशवान नहीं होता तो हम ईश्वर होते, है ना। तो ईश्वर की एंटिटी और हमारी एंटिटी में एक बेसिक फ़र्क है। तो बेसिक प्रिंसिपल जो कहता है ना कि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कहती है एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स, हम कहते हैं एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। अगर हम इन 2 थ्योरीज को इकट्ठा रखते हैं, 5 एलिमेंट थ्योरी में आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, है ना, air and ether mix get together to make something called air energy, so called vata. Fire energy is fire element, हाँ, और water energy is water and earth element, हैं, जिसको कफ कहा है। तो वात पित्त कफ, ये 3 दोष हमने कहा हमारे शरीर में हैं। अगर इसको कंपेयर करें विद मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी,
तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में स्ट्रक्चर ऑफ द एटम देखें तो उसमें क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन्स इन द सेंटर विच कैरी वेट एंड मास, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा दैट इज द अर्थ एलिमेंट, ठीक है। देन वी से इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज पार्टिकल, वो चार्ज क्या है बताइए, फायर एलिमेंट। Then we say that this electron is continuously moving in the orbit. That movement is because of the movement क्या है, air element, Vakati Gannanyo, the one which moves is the air. Then there is a distance between neutrons and electron. Neutron center में है, electron orbit में घूम रहा है, दोनों के बीच में क्या है, space element, ether, आकाश. Or the moisture content of an atom is nothing but the water element. So you see, are we talking about the same thing with different expression? हमने इसको पंचतत्व की थ्योरी कहा, ये नई अंग्रेजी जो सीख के आए इन्होंने इसको मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी नाम दे दिया. So it is like science was always there before modern day scientists were born. It is like Newton's laws were there before Mr. Newton was born. है ना, न्यूटन लॉ तो न्यूटन से पैदा होने से पहले से थे ना. सेब तो पहले भी गिरता था ना मेज पे, उसने नई चीज़ नहीं ढूंढी थी, उसने उसी को री इंटरप्रेट किया था. बट एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट हमने कहा चलो जी सर आइजैक न्यूटन ने ढूंढा है तो उनको सब हम सम्मान दे देते हैं, इस बात का तमगा उनको लगा देते हैं, ऑल्दो इट वाज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग. तो ये जो कॉन्सेप्ट है, हमने अगर 5 एलिमेंट थ्योरी और त्रिदोष की थ्योरी अगर लोगों को बेसिक समझा दी ना, उसके बाद उसका जो प्रकृति एनालिसिस आजकल हम कर रहे हैं, भारत सरकार ने एक बहुत अच्छी योजना बनाई है जिससे आपका लोगों की प्रकृति, जैसे हम करोड़ों लोग हैं इस धरती पर, हमारी शक्ति नहीं मिलती, हमारा आहार विहार विचार संस्कार नहीं मिलता ना. वी आर बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन हर एक की एक नाक है, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 4 लिम्स हैं, लेकिन क्या कोई मिलता है किसी से? यूनिओव्यूलर ट्विंस भी नहीं मिलते कई बार, है ना. छोटा सा फ्रैक्शन ऑफ ए डिफरेंस विल मेक दम ए डिफरेंट एंटिटी. तो व्हाट ए डिजाइनर ही इज. करोड़ों लोग हैं, हर एक की प्रकृति उसने अलग से बनाई है. इसलिए आयुर्वेद कहता है कि आपको दवा भी भोजन भी प्रकृति अनुसार करना चाहिए. प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में आयुर्वेद ने बहुत इलेबोरेट डिस्क्रिप्शन दिया है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के अंदर कि प्रकृति एनालिसिस पहले करो कि आप वातज हो, पित्तज हो या कफज हो. जैसे वात प्रकृति के लोग, कुछ लक्षण मैं फटाफट बोल देता हूँ, समय कम है, डॉक्टर राखी ने भी बोलना है. देखिए, वात प्रकृति के लोग होंगे लीन एंड थिन, गोट लाइक पर्सनैलिटी. पित्त आर लायन लाइक पर्सनैलिटी, हैवी मॉडरेटली बिल्ट, बीच का. कफ प्रकृति के लोग होंगे हैवी एंड स्टाउट लाइक एन एलिफेंट, है ना, लॉट ऑफ एनर्जी, बिग बॉडी, बिग मसल्स, ब्रॉड शोल्डर्स, बट स्लो एंड लेजी एंड हैवी एंड डल. राइट, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखेंगे तो ऐसे ही मिलेंगे ना. जो वात प्रकृति की बकरी है, अगर उसको घास का एक लॉन दे दो को दिस इज ऑल योर्स, ईट इट, तो वो नर्वस हो जाती है, एंग्शियस, ओ माय गॉड आई कांट बिलीव दिस इज ऑल माइन. थोड़ा सा वो यहाँ से खाएगी, फिर थोड़ा उधर से खाएगी, फिर थोड़ा उधर से खाएगी. वो एक जगह फोकस नहीं कर सकती कि चलो धीरे धीरे खा लूँगी. राइट, दैट इज वाता प्रकृति. माइकल जैक्सन की तरह है वो, वॉकिंग इन द एयर एंड टॉकिंग इन द एयर, है ना. जिस ढंग से माइकल जैक्सन डांस करता था, हिज लिम्स गो लेफ्ट एंड राइट, ही कैन नॉट वॉक स्ट्रेट ऑन द रोड. पित्त पर्सनैलिटी के लोग होते हैं लायन लाइक पर्सनैलिटी, माई वे और हाई वे, ठीक है, लॉट ऑफ एनर्जी, स्ट्रॉन्ग आई, दे आर गो गेटर्स, दे आर परफेक्शनिस्ट इन लाइफ. ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? पित्त प्रकृति के लोग, ठीक है, लायन लाइक पर्सनैलिटी विच आर मॉडरेटली बिल्ट. कफ प्रकृति की होगी हैवी एंड स्टाउट लाइक ए लायन, कि भाई बैठा खड़ा हूँ तो बैठ जाऊँ, बैठा हूँ तो सो जाऊँ, या मतलब बैठा हूँ तो लेट जाऊँ, लेटा हूँ तो सो जाऊँ. राइट, तो इस तरह के हर पर्सनालिटी टाइप के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उनकी लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स भी होती हैं. तो आपको अपनी प्रकृति के अनुसार, ताकि वो, अगर आप पित्त प्रकृति के हैं आप फायरी हैं, ठीक है, तो फायरी लोगों को क्या होगा? ब्लड प्रेशर जल्दी जल्दी बढ़ेगा, टेंडेंसी है. पित्तज व्याधियाँ उनको ज़्यादा होंगी. टू गिव यू सम एग्जाम्पल्स, हाइपरटेंशन, क्या लगता है कौन सी बीमारी है? पित्त डोमिनेंट है ना, है ना. अल्सरेटिव कोलाइटिस, फायर एनर्जी, Crohn's disease, fire energy, all kind of indigestion, fire energy imbalance.
You have psoriasis, fire energy imbalance. You have redness in the eyes. You have sunburns, fire energy imbalance. You have eczema. You have certain type of cancers, fire energy imbalance. Right? कफ क्या होगा? जो वर्ड कफ है ना, कफ, अंग्रेजी शब्द क्या है उसके लिए? फ्लैम को क्या कहते हैं? COUGH, cough has gone from a Sanskrit word called kapha, which means phlegm, which means slimy, which means mucilaginous, which means sticky. ये सब अंग्रेजी संस्कृत में अनुवाद पढ़ेंगे तो यही लक्ष्य, यही गुण है उसके. ऑफ शब्द जो है संस्कृत से ही चुराया गया कफ शब्द से गया है. इस तरह के बहुत सारे. वाता को जस्ट टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल हमने एयर एनर्जी कह दिया. ऑल काइंड ऑफ सिंपैथेटिक एंड नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर वुड बी वाता डिसऑर्डर्स, लाइक एंजाइटी, वाता डिसऑर्डर, इंसोम्निया, डिप्रेशन, अल्जाइमर्स, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ऑल दीज आर वाता इम्बैलेंसेस. यू हैव पेन्स एंड एक्स. हम बोलते हैं अरे जोड़ों में क्या हो गया? पंजाबी में क्या कहते हैं? क्या हो गया है? जोड़ों में क्या हो गया है? वाई हो गई है या बादी हो गई है. वो वाई और बादी शब्द सब आयुर्वेद से गए हुए हैं. ठीक है. सो है ना, कहते हैं ना जी बादी हो गई. वो बादी शब्द क्या है? वो वायु शब्द को ही हमने रीजनल भाषा में बादी कह दिया. तो दैट मीन्स वेर एवर पेनफुल स्टिमुलाई इन द नर्वस सिस्टम इज इन्वॉल्व, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस को हम उनको आमवात या संधिवात कह दिया. तो इस तरह से डिजीजेस का नॉमेनक्लेचर किया गया. बहुत डिटेल वर्णन है हमारी पुस्तकों में, हमें पढ़ाया नहीं गया, ये हमारी प्रॉब्लम है. ठीक है. तो कमिंग बैक टू नाउ डिजीज प्रोसेसेस के हिसाब से आपको कहा जाता है कि जब भी हम खाना खाते हैं, आयुर्वेद कहता है कि वेन एवर दीज 3 दोषास गेट आउट ऑफ बैलेंस वी गेट सिक, बट इफ दे रिमेन हेल्दी वी रिमेन बैलेंस्ड. ठीक है. तो तीनों दोषों को समावस्था में रखना ही हमारे लिए चैलेंज होता है. तभी हम सुबह में स्थिर रहते हैं जब ये तीनों बैलेंस चले. ये चलते कैसे हैं? ऐसे अप एंड डाउन एंड अप एंड डाउन एंड अप एंड डाउन, लाइक द स्ट्रिंग्स ऑफ ए गिटार, फ्रॉम लाइफ टिल डेथ. जीवन से मृत्यु तक ऐसे ही चलते हैं लोग. वात पित्त कफ, वात पित्त कफ, वात पित्त कफ, वात पित्त कफ, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होते रहते हैं. ठीक है. अब कोई पूछेगा कि भैया ऊपर नीचे क्यों होते हैं? क्योंकि द फूड यू आर ईटिंग इज ऑल्सो कंटेनिंग दोज 5 एलिमेंट्स. The water you are drinking is also containing those 5 elements, but the ratio varies. ठीक है. The air you breathe in also contains all those 5 elements. हवा आप ले रहे हैं दिल्ली की प्रदूषित हवा, तो इसमें क्या क्या है? शुद्ध ऑक्सीजन है क्या? और क्या क्या है साथ में? निमोनिया भी है, पोल्यूटेंट्स भी हैं, मोबिलायर के कण भी हैं, है ना. तो वो क्या है? पृथ्वी तत्व है ना. वो विशाला पृथ्वी तत्व है, लेकिन है, हम सोचते नहीं हवा है खाली अंदर जा रही है, नहीं, समथिंग मोर देन दैट. सो कितना टाइम है? प्लीज कंक्लूड फास्ट. ओहो, अच्छा, ये तो मैंने शुरुआत की थी. अच्छा चलिए. तो बॉटम लाइन ये है, जब व्याधियाँ नॉमेनक्लेचर के साथ हम आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करते हैं, उसी के हिसाब से फूड जो है ना, दे ऑल्सो कंटेन दोज 5 एलिमेंट्स, और उनकी प्रॉपर्टीज आयुर्वेद में मेंशन है कि ये चीज़ वात बढ़ाएगी, ये पित्त बढ़ाएगी और कफ बढ़ाएगी. इसीलिए आयुर्वेद कहता है वो फूड खाओ विच इज़ राइट अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप. तो फूड पर हम पूरा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए बहुत बड़ी वर्कशॉप्स कर सकते हैं, जिसको मैं किचन फार्माकोलॉजी बोलता हूँ. टेकिंग आयुर्वेदा टू स्कूल्स एक प्रोजेक्ट पे मैं काम करता हूँ इसी ढंग से. जैसे अगर कोई पित्त प्रधान व्यक्ति है और उसको हाइपरटेंशन रहता है, तो उसको 2 चीज़ मैं दूं कि हॉट कप ऑफ ब्लैक कॉफ़ी और ग्लास ऑफ कोकोनट वाटर. कौन सा देना चाहिए उसको? नारियल पानी, राइट. वाई नॉट हॉट कप ऑफ कॉफ़ी? क्या करेगी वो? बढ़ा देगी ना, उसकी एसिडिटी भी बढ़ा सकती है, उसका बीपी भी बढ़ा देगी. तो देखा, आई मीन, वॉज दैट ए मेडिसिन? वेल दैट वॉज ए मेडिसिन. इसलिए आयुर्वेद कहता है फूड एंड मेडिसिन आर नॉट टू सेपरेट थिंग्स, इट इज द सेम थिंग स्पोकन विद डिफरेंट एक्सप्रेशन. तो इसी तरह से आयुर्वेद के, बस क्विकली सम अप करता हूँ, जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मॉडल में मेरा सजेशन है, आयुर्वेद के वैदिक वाङ्मय के मल्टी डायमेंशनल फीचर्स हैं जो हेल्थ केयर को स्वस्थ को करने में हमें हेल्प करेंगे.
एक रोल ऑफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इन हेल्थ केयर, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम भूल जाते हैं। रोल ऑफ वास्तुशास्त्र इन हेल्थ केयर, ये हमारी वैदिक वांग्मय में से चीज़ें हैं। हम कहते हैं ना घर वास्तु के हिसाब से बनाओ, ग्रह नक्षत्रों का कोई ना कोई इंटरेक्शन होता है। रोल ऑफ मंत्रस इन अवर हेल्थ केयर, मंत्र पर मेरे पास बहुत सारा काम था। जैसे एक शब्द है राम, राम शब्द क्या करता है? इट ब्रिंग्स यू कामनेस, इनर पीस एंड हार्मनी, ठीक है। इसलिए मेंटल सेटाइटी के लिए, मानसिक शांत के लिए राम अपने आप में ही एक महामंत्र है। तो ऐसे अनेकों मंत्र हैं जो प्रार्थना के रूप में भी हम बोलते हैं। इसी तरह से आयुर्वेद को कहता है चिकित्सा दो प्रकार की होती है, दैव व्यापाश्रय चिकित्सा और युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा। युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा वो है जहाँ पे हम कोई ट्रिक लगाते हैं, जुगत लड़ाते हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, पेट सीटी कराते हैं, ये सब क्या है? युक्ति प्रमाण, ठीक है। दूसरा होता है दैव व्यापाश्रय, विच इज़ ए डिवाइन एस्पेक्ट ऑफ, जिसमें मंत्र चिकित्सा है, तीर्थ यात्रा है, हवन है, यज्ञ है, दान है, ये सब, ठीक है। तो इसी तरह से मेंटल हेल्थ के लिए कुछ और चीज़ों का जो रोल है, एक तो रोल ऑफ मेडिटेशन इन हेल्थ केयर। मॉडर्न मेडिसिन में उन्होंने माइंडफुलनेस कहा, किस तरह की प्रेज हैं, बहुत तरह के मेडिटेशंस हैं, आर्ट ऑफ लिविंग से लेके अनेकों और कई इस तरह के स्कूल ऑफ थॉट्स हैं विच टीच यू रोल ऑफ मेडिटेशन। माइंडफुलनेस शब्द जो है ना वेस्टर्न मेडिसिन में गया, वो सब हमारे से ही चुराया हुआ वर्जन, उसको उन्होंने माइंडफुलनेस कहना शुरू कर दिया, ठीक है। इसी तरह से रोल ऑफ योगा इन हेल्थ केयर आज पूरे वर्ल्ड में नोन है। मैं कुछ योगासनों पर साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन से बताना भी चाहता था कौन सा क्या करता है, पर टाइम कम है। सूर्य नमस्कार क्या करता है? इट कंट्रोल्स द ब्लड फ्लो एंड फ्लो ऑफ प्राणा ऑल ओवर द बॉडी। ये उसको यूनिवर्सल इक्वलाइज कर देता है पूरे शरीर के अंदर। इसलिए जैसे अगर आप वज्रासन करते हैं, कुछ लेडीज बैठी हैं यहाँ, बता देता हूँ दो तीन चीज़ें क्विकली, योग पे फिर बात खत्म करेंगे। आप वज्रासन में जब बैठते हैं, जैसे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, ऐसे खाना खाना बैठते हैं, तो क्या होता है? इफ यू सिट लाइक दैट फॉर 10 to 15 minutes, it is equal to 2 kilometers of walk every day. Physiologically, what happens? The blood flow starts cutting down towards the legs and increase towards the abdomen. So all the red blood cells go to take the food and churn it faster and take it to the last cell, right? तो उससे लिवर को कम काम करना पड़ा और फिजियोलॉजिकली भोजन जल्दी पच गया। इससे ओबेसिटी भी कंट्रोल हुई, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल हुआ, हार्ट अटैक भी प्रिवेंट हुआ, है ना। इसको करने से शरीर इंद्र के वज्र के समान कठोर बन जाता है, यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स परसेंटेज एब्जॉर्प्शन बॉडी में बढ़ जाता है, इसलिए वज्रासन कहा है। ये एक ही ऐसा आसन है जो आप भोजन के फौरन बाद कर सकते हैं। इसी तरह का ये एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ खाली। ऐसे ही पश्चिमोत्तानासन है ना। लॉन्ग कोई योगा टीचर है यहाँ पर? पश्चिमोत्तानासन कैसे करते हैं? आप आ जाइए एक मिनट, हाँ एक मिनट डेमो कर दीजिए क्विकली। पश्चिमोत्तानासन अगर आप करते हैं स्पेशली लेडीज़ के लिए, क्या लाभ है उसका? धन्यवाद जी। देखिए सारे योगाचार्य इस देश के सच्चे क्या है, खाली टीचर नहीं है, अध्यापक इसके नहीं हैं, स्वास्थ्य रक्षक हैं। ऐसे क्या किया? यू कीप योर लेग्स लॉन्गर लाइक दिस एंड यू बेंड डाउन। इससे स्पेशली लेडीज़ में क्या होता है? पेल्विक स्ट्रेच होता है, पेल्विक मसल स्ट्रेच हुए और जब आप आते हो वापस ऐसे ही वो एक्सपेंड हो गए, है ना। उससे क्या होता है? ब्लड फ्लो इंक्रीजेस, ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीजेस द गायनो एरिया, दैट्स व्हाई इट प्रमोट्स फर्टिलिटी, इट इम्प्रूव्स पीसीओडी कंडीशन, इट रेगुलेट्स योर मेंस्ट्रुअल साइकिल, improves fertility also. So all these things are addressed with this asana called Paschimottanasana. ऐसे एक था तितली आसन, बटरफ्लाई पॉस्चर, जिसमें दोनों, एक मिनट तितली आसन और दिखा दीजिए। बटरफ्लाई पॉस्चर में क्या करते हैं? दोनों पैरों को नमस्ते की पोजीशन में जोड़ के ऐसे ऐसे करते हैं ना ब्लिंक, तो जो तितली की तरह परों की तरह दिखता है, उससे भी यही होता है, इंक्रीज ब्लड फ्लो, जिससे pelvic area opens up, blood flow and oxygen supply gets promoted. That's why it's called butterfly posture. Also is good for improving fertility, gynec disorders, menstrual irregularity, hormonal imbalance. तो इस तरह के योग एक बहुत बड़ा अथाह सागर है। मेंटल हेल्थ के लिए एक मैं बोलता हूँ आयुर्वेद के 4 पिलर्स हैं, आहार, विहार, विचार एंड संस्कार। आहार में फूड की हमने बात कर ली, ईट राइट फूड अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप। विहार इज योर लाइफ स्टाइल,
है ना, हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं, लेकिन जितना वर्णन हमारी किताबों में लिखा है ना, जिस दिन हमने पूरा अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया ना, इन सब के छक्के छुड़ा देंगे जो लाइफस्टाइल की बातें करते हैं, उन्हें पता कुछ नहीं है। जैसे अगर आपको खांसी जुकाम हो और आपको बोलूँ स्विमिंग पूल में जाना है चिल्ली कोल्ड पानी में, डू यू डू दैट? अगर आपको जुकाम लगा है सब, तो ये क्या था, पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल, कि कैसा कपड़े किस समय पहनने हैं, किस समय डेली रूटीन, क्या दिनचर्या और ऋतुचर्या का होल एस्पेक्ट आयुर्वेद ने इतना विशद वर्णन किया है। अगर उसी को हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मॉडल में अप्लाई कर देंगे ना, तो वो कंप्लीट पर्सपेक्टिव ऑफ होलिस्टिक हेल्थ है। ये सारी चीज़ें इन डेप्थ पढ़ानी पड़ेंगी हम लोगों को। तो ये तो हो गया यौगिक पर्सपेक्टिव। अब इसी तरह से रोल ऑफ डाइट हेल्थ केयर हो गया, वाता पित्त कफ आपको बता दिया, लाइफस्टाइल बात हो गई, स्ट्रेस के लिए बात हो गई, बहुत सारी नर्वस सिस्टम के लिए चीज़ें हैं हमारे पास, ब्राह्मी, अश्वगंधा, वचा, जटामांसी, मैनी ऑफ देम। स्पिरिचुअलिटी एंड हेल्थ केयर पे मैं पहले बोल चुका हूँ कि उसका स्पिरिचुअलिटी एस्पेक्ट, चाहे वो भजन करते हैं या प्रार्थना करते हैं, संध्या करते हैं, कुंभ के मेले में स्नान करने जाते हैं, उन सब का भी मेडिसिनल इफेक्ट रूटेड है। ये आज साबित हो चुका है। करोड़ों लोग गए, बताइए कितने लोग बीमार पड़े? ऑल ऑफ सेफ, राइट? तो व्हाट ए मिरेकल, क्या हुआ, कोरोना काल और ये वो सब निकल गया, उसके बाद करोड़ों की जनता वहाँ पहुँच गई, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेला लग गया वहाँ पे, है ना, मैं भी होके आया हूँ। तो जो गोरे आए हैं सारे सेलिब्रिटीज़, किसी से भी पूछो, मेरे अपने फॉरेनर पता है कितने पेशेंट, कम से कम 4,500 लोगों के लिए मेरे लिए पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन था कि बेटा वहाँ जाना है। 4,500 तो मेरे पर्सनल डेटा में से लोग वहाँ पहुँचे हैं। ठीक है, वो कहते हैं ओह माय गॉड इट वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। उनके एक्सप्रेशन सुनो तो आप हैरान होते हो कि यार इनको क्या डुबकी मार के, हम सोचे अरे गंदे पानी में डुबकी मार के आया तो क्या बड़ी बात है, बट ही नोज श्रद्धा की बात है। उस श्रद्धा के साथ जो आया तो भगवान शिव की उस पर कृपा रहती है, वो वेस्ट नहीं जाता। वो भी हमारे लोगों से सीख के कहता है हर हर महादेव, धीरे धीरे बोलेगा पॉज में, लेकिन बोलता है, श्रद्धा की बात है, राइट? तो बस इसके साथ ही बात खत्म करूंगा। आयुर्वेद की बहुत सारी थेरेपीज, जिसमें पंचकर्मा, नेचुरोपैथी, मसाज मोडालिटीज और किचन रेमेडीज ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेद का रसायन पक्ष इतना स्ट्रांग है कि आम जनता को हमने थोड़ी थोड़ी भी एजुकेशन उसकी दे दी ना, तो इस देश में क्रांति ले आएंगे। हमारे यहाँ का जो कंट्री है ना, गरीब कंट्री हैं, लेकिन इस मामले में हम इतने अमीर हैं, अपर स्काई इज लिमिट। सो जाते जाते एक ही बात कहूँगा, रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है कि थे हार जाते अन्य देशी वैद्यवर जिस रोग से, हम भस्म करते थे उसे बस भस्म के ही योग से, थे दूर देशों के नरपति हमको बुलाकर मानते, इतिहास साक्षी है हमें सब थे जगत गुरु जानते। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वाद से मुझे सौभाग्य मिला है हिलेरी क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स जैसे बहुत सारे लोग और आपके बॉलीवुड के भी स्टार्स, कई लोगों को मैं एज ए पेशेंट देखा, सिर्फ इसलिए बॉलीवुड का लोहा मनवाया ताकि वो आयुर्वेद का प्रचार करें जा करके। इसलिए नहीं कि मुझे उनके साथ कोई फ़ोटो खिंचवाने का शौक़ है, इसलिए कि सेलिब्रिटी जब बोलेगा समाज सुनेगा और मैसेज दूर तक जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir.